Yeah, so welcome all. Good afternoon. It's a wonderful session today. I'm sure that you will be gonna like it. So before proceeding further, again just it's a formality that to let you know about Insan and my innovation. So Insan is Indian National Suggestion Schemes Association, established in 1987 and having 700 plus members across India. So objective is very simple, that encourage organizations to create creativity and innovation within the organization. Employee engagement is another part of it. So we are giving a platform where people and organizations come, they compete, they get a best of the knowledge in this domain and grow. So in the last 32 years, we have been doing so various activities. So we have 5 chapters. So WIC is Western India chapter, Aurangabad chapter, Northern India chapter, East India chapter, and South India chapter. So various organizations, as you can say, Tata Motors, Ritters, Mahindra and Mahindra, TVS Motors, Hero Honda, Sriram Pistons. So these are the few members of the Insan. We every year we hold the national level convention. This year also we held it in January. So next we will be gonna planning it and we will announce shortly. Then there is various activities we conduct as a part of the seminars. We conduct the webinars, poster competitions, technical competitions. So about what brings the Insan to the organization is basically we are committed to the employee engagement, right? Then we give the platform for an operational excellence. We post employee motivation, build an iconic culture, innovation culture. You can say we help them to build the culture for that. Then the leads towards the digitization. That is a very important part where we help organizations digitize entire process of creativity, continuous improvement, suggestion schemes, idea generation. The trainings from the industry best experts. So today's program is one of the part of that activity, and the forum to exchange the best practices shared by the successful organizations. So these are the organizations, and once upon a day, Sudhir Dateji is the past president and chief editor of the Insan. He shared an article with me, and I thought this is an where very important for all of us to understand the today's changing scenario. That is digital now key to survive and thrive, right? So just to in line with that, so my innovation is again one of the brand cloud-based platform. It is purely Indian startup, you can say. It's an AI and cloud-based software solution for the industry. It's an manufacturing excellence through the employee engagement. We have been doing the paperless, all the activities as various business processes. We provide customized solutions also, and it's in the best in industry practices. You will get it in the My Innovation platform. So there are various modules in the My Innovation. So you can see that suggestion box. It's an one of the best platforms so far. Then you have consent box, survey box, audit. So whatever the internal audit happens, you can do it digitally. Then the daily work management, TPM tagging, near miss. So these are the few of the modules. Uh, and you will get out of that the analytics. There is a mobile app, Android and iOS, and that's all about a very brief introduction about Sun and my innovation, considering the today's time. So I will not take much of the time now, and I'll request VK sir to take a baton and please start. Okay, Razawal sir, thank you so much. Thank you so much. Yes, sir. Good afternoon, everybody. Good afternoon. Good afternoon. Respected Chairman Sir Yogesh Manjalji, respected our Insan President Mr. U.S. Bapa Sahab, and Insan colleagues Mr. Satprakash, and 2 more persons are there. Can you, the ones up, can you take the photo of those? Mr. Naresh Gandhi, Executive Member of North India Chapter. Yeah. Mr. Naresh Gandhi. Yeah.
Naresh Gandhiji, you can on your video. Jagdish Prasad, you can also on your video. Yeah, Jagdish Prasad, we can see that Jagdish Prasad is there. Mr. Naresh Gandhi is not there. I think he is also there. Yeah, he's also there. They can on your see. What I'm doing is that I'm putting all the our attendees into the panelist mode so that they can on their videos. And I request everyone to be comfortable on your videos, find a good spot, and open your more interactive. Actually, this time I wanted to introduce our North India team because last time we couldn't do it. For that, I'm sorry. This time our chairman, Mr. Yogesh Munjal, is there, and myself, VK Srivastava, and Sat Prakash, Joint Secretary, he's also with us, and our executive committee member, Mr. Jagdish Prasad, he's from BHEL, he's also with us, and Naresh Gandhi from Hero Motocorp, he's also there. So this is, we have very compact committee of North India chapter. And if you look into the membership, so I think all the big giants corporates are there. So as Mr. Goenka ji wanted to know, Goenka sahab, we are welcoming you too, because I want to explain further. But before that, I'd like to just give the brief about how many companies are going to join today. So there are big corporates. I will not take the name because it will take a long time. At least from North India, there is a Mahindra and Mahindra from Haridwar, Mahindra and Mahindra from Rudrapur, then Tata Motors, Rudrapur plant, Tata Motors Lucknow plant, and Tata Motors Ahmedabad plant, Tata Motors Jamshedpur, Tata Motors Pune plant. And if you look for this auto segment here, then Maruti in a big way from all the plants, then Munjal Sova in a big way from all the plants, and Hero Motocorp from all the plants. Apart from that, then Sriram Piston Group is also there from both the plants. Then Bharat Electronics Limited, Ghaziabad, they are also with us. Indian Oil, expected, they wanted to join. Then NTPC and HL. Apart from that, their associates are also there. Associates means that the Tata associates and Hero associates. So I cannot, because if I have to take the name of associate, there are 100 associates. No, it's so okay. It's okay. Time. The only thing I think with your interaction, people may give their names, and you will come to know that they belong to which associates. And it's a big pride for us in some North India chapter that Bapat Sahab and Yogesh Munjal Sahab has given a flag to us, the committee, to organize such event. And this is a second program. Goenka Sahab, this is a second program where you are with us, and you were with us in CO meet. Yes, yes. Still, we remember that you have not got the time more than 5 minutes. So I think today you are going to have ample time. I think you can do whatever way you want to share with the all the participants. And it's a big pride for us that you have accepted our request. So we welcome all the participants. Let us give a big hand for the participants, those who are joining across the country. Because insan is not in isolation. Insan means each corner of India. That is insan. No, sir, Baba Sahab, I think the meaning is same, because we want that each corner must join. And today we are seeing that it is not only because North India, when we started, Munjal Sahab already precise us, don't keep within your small circle, make wider and wider and wider. So, sir, today we have reached to that level where anybody can knock to anywhere. So we are proud of that. And before I give the green signal to our guest, Mr. Dr. Goenka, I will just introduce in a very small introduction, because he is having very long introduction that I cannot cover within 1 hour even. So if we look into the student life, he was NCC cadet, theater, stage artist, play and synthesizer and hockey player.
and he was a researcher also too. He has facilitated more than 5 lakhs people, and his clientage, which includes an Okina school, children from 300 schools, universities from India, overseas, and professional academics, and CEOs, judges, bureaucrats, business owners from more than 150 corporations, PSUs, ministries, NGOs, and trained NBI and South Africa International Finance Corporation and World Bank also. And All India Management Association also, he is very much active in that. And he was involved fully in educational training and consulting. On board, he is the founder of managing director of Wow Factor in India. Actually, this is a Wow Factor in India, but he used to conduct program in South Africa, and many of our Insan North India corporates best suggester, they've been to South Africa, and there they have done the presentation. Goenka sir, am I right? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, लेकिन आप हमें नहीं ले गए. Heads of then he is head of Goenka Institute of Education and Research and Goenka Public Schools. Member of United Nations Global Compact Network, chairperson of Advisory Board, Taru Foundation, advisor of Sports Academy Association of India, then training partner, Indian Institute of Corporate Affairs. Professor Maharishi Dayanand University, MD Rohtak, then channel partner of National Small Industries Corporation, NSIC. सर मेरे 15 मिनट चले गए. So that means you want that I should sum up? Should I sum up? Okay. And in nutshell, I will only say that he is going to speak like a Bihari ke dohe. I think Bihari ke dohe, if somebody knows, understand Hindi, he is just like that. And I think today all those who are present here in this program, they are not going to have any sleep. So I will request all of participants, including our committee members, that we should give big hand to Dr. Goenka. We should give big hand to Dr. Goenka, and we welcome you all, sir. Now this is your turn. Please go ahead. Thank you very much, sir. Namaste and good evening, everyone. Hope all of you are in great spirits and great state of mind. So, Munjal Saab, thank you very much. Satyaprakash sir, Srivastav sir, Bapat Saab, Raj Saab, Jagdish Prasad ji, thank you very much for inviting me for this kind program. So, can I request first of all to please switch on your videos, please? क्योंकि जब तक मैं आपकी शक्ल नहीं देखूंगा मुझे पता नहीं लगेगा कि आप सब जगे हुए हैं या मेरे साथ में हैं. Thank you very much. Please switch on your videos. Ankit Saab, thank you very much. Rajesh Arya ji, Ganesh ji, Rahul Sharma ji, Balkishan Sharma ji, Sanket Kumar ji, thank you very much for switching on your video. And believe me, this next 1 hour, we're going to have a gala time. Can I request Alok Sharma ji, Akash Kumar ji, Ankit Rai ji to please switch on your videos, please. I really want you to take you through some of the greatest experience of your life today. This is what I can promise you. So to start with, I want to start it with a small story. Because today's topic is very important. We are talking goal setting and what we are talking through subconscious mind. Believe me, knowingly, unknowingly, consciously, unconsciously, we know it, but we don't do it. So goal setting is CDC. First example I want to ask you, I hope most of you and all of you have traveled by train. Yes, no? Or by a bus or by a flight. क्योंकि अंकित मेहर साहब, सुधीर साहब तो बहुत सीनियर है, बालकिशन शर्मा साहब, उमेश गवाली साहब, आई एम श्योर गणेश साहब, आप सब लोगों ने ट्रेवल तो किया होगा ट्रेन से, प्लेन से, बस से. यस सर, यस. तो एक बात बताइए, जब आप स्टेशन पे किसी काउंटर पे जाते हैं और आप कहते हैं भैया टिकट देना, वो आपसे क्या पूछता है? हेलो, किस रूट की टिकट देनी है? रूट नहीं, आपको कहाँ जाना है? वो सबसे पहले वो कहता है जाना कहाँ पर है. जी जाना कहाँ है. So just imagine, चाहे 2 घंटे का ट्रेवल हो, चाहे 24 घंटे का ट्रेवल हो, the first thing that guy asks you is जाना कहाँ है.
my humble request is please अपने वीडियो अपने साउंड को अनम्यूट कर दीजिए. एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बिकॉज व्हेन आई एम गोइंग टू आस्क यू दैट टाइम प्लीज आप अपना वीडियो या मतलब ऑडियो स्विच ऑन करके बोलेंगे तो आई वुड ट्रूली अप्रिशिएट इट. So the point I was trying to tell you, whether you to travel for 2 hours or you travel for 24 hours, the first question they ask is जाना कहाँ है, what is your destination? और हम 70 साल की जिंदगी जीते हैं जिसका हमें destination नहीं पता होता है. And that is the point I'm going to cover today with all of you. And to find your goal and to find your strategies in life, I'm going to share a first story with you कि लाइफ में व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज परसेप्शन. सो वंस क्या हुआ सर, मुंजाल साहब, एक छोटा सा एक यंग बच्चा था, उसकी मदर बीमार हो गई. एंड ही वाज इन अ डिलेमा कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, कहां से पैसे लेके आऊं, बिकॉज डॉक्टर सेज इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 50,000 रुपीज. तो उसको सुधीर दाते साहब कोई मिला नहीं, कपिल अग्रवाल साहब, उसको पता लगा कि मैं क्या करूं भगवान, किसके पास जाऊं. और गणेश अतावरे साहब, उन्होंने कहा कि मैं कैसे पता करूं कि मेरे को हाउ आई एम गोइंग टू सेव माय मदर. सो ही डिडंट फाइंड एनी सॉल्यूशन. सो लास्ट में ही वेंट टू शिव जी के मंदिर एंड ही टुक अ गुब्बारा, अ बलून, उसको उसने फुलाया और उस गुब्बारे के साथ एक छोटी सी चिट्ठी लगाई. ही स्टेपल्ड अ चिट. And on that chit he has written कि God please help me, I know that you help everyone, my mother is not well, God please send me 50,000 rupees. With this note he sent that गुब्बारा upstairs. गुब्बारा ऊपर जाता गया, एक जगह जाकर फूट गया, burst हो गया, and it came down. And when it came down it fall into a place where 6-7 police walas were sitting. So when that gubbara came into that police wala's hand, they could read the note, and D.K. Arora साहब, he says कि इस नोट में क्या लिखा है. And somehow those police wala got impressed and they say चलो यार इस बच्चे की मदद करते हैं. So उन्होंने आपस में देखा, they were only able to collect 25,000 rupees at that point of time. So they found out the boy and they said बेटा क्या बात है. बोले जी मेरी माँ बहुत बीमार है. तो बोले क्या हो गया. बोले मैं क्या करूं सर, मुझे कोई उपाय नहीं मिला, मैंने आज रात को भगवान जी को चिट्ठी गुब्बारे में भेजी है. And the police wala says, you know, you are very lucky. Satish Kumar Jang साहब and Prem Prakash ji and Rajesh Arya साहब and Naresh ji, Sanjeev Raji साहब, Venkala Rajesh sir. The boy was very happy. And what happened? The police wala says, you know, Bhagwan ने तुम्हारी बात सुन ली and they have sent you this 25,000 rupees. And the boy was so happy. Thank God, तू सबकी बात सुनता है, तूने मेरी भी बात सुन ली. तो विनीत पांडे साहब, he was extremely excited and he thanked police wala in a very big way. He says, thank you very much. And with thanking and with a smile on the face, police wala went away. और उस लड़के ने 25,000 रुपए लिए, भागकर मंदिर में गया और उसने कहा भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मेरी बात सुन ली. पर गॉड, मेरी आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है. नेक्स्ट टाइम whenever you send money to me, please send it directly to me, because I know you have sent 50,000 rupees, but ये तो पुलिस वाले हैं ना, 20-50% इन्होंने रख लिया और मुझे खाली 50 की जगह 25,000 रुपए लाके दिए. So moral of the story is, लाइफ में परसेप्शन बदलना सबसे इंपॉर्टेंट है. And you know friends, to all ladies and gentlemen, the point I am trying to speak to you today, in life, the most important thing in life is, if we can't change our perception, we are not going to survive. Whether you are at home and whether you are at workplace, whether you are CMD of a company or whether you are part of a company, somewhere down the lane, your perception plays. And that's what I'm going to speak to you today. In life, it is so very important that whenever you meet someone, you leave that aura, you leave that energy in front of those people, and that is what is going to stay with you. So please help me to understand, am I audible correctly? Is my language okay? Yes, no, आप ऐसे ऐसे कर देंगे तो भी मैं समझ जाऊंगा. बापट साहब, मुझे आप वो शेयर कर दीजिए so that I can do. D.K. Arora साहब, I hope you can listen to me. Harjeet Singh साहब, thank you very much. Satish साहब, thank you very much for being with me. Balkishan Sharma साहब, very nice to see you. And I could see many people. Pankaj Amaria साहब, HR 118, Dr. Dinesh साहब, Uday Harte साहब, please switch on your camera. आपकी शक्ल मुझे दिखेगी
तो मुझे उतना ही आनंद आएगा, क्योंकि व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे कि आपका जो फेस है, ऑन योर फेस यू गॉट 44 मसल्स. हाउ मच? प्लीज डू सम एक्सरसाइज. टेल मी हाउ मच. 44. डू इट लाइक दिस प्लीज, so that I know that all of you are alive. So we got 44 muscles. खाली 4 muscles खाने के काम आते हैं. You use only 4 muscles to eat, and 40 muscles shows your face expression. So as I go, and if your cameras are on, I'll be able to tell you, Nikita ma'am, कि आपके दिल में क्या चल रहा है और आपके चेहरे में क्या क्या बात है, so that it is identified. सुरेश नायर साहब, it is going to be something very great from an HR perspective, क्योंकि दुनिया में सबसे मुश्किल काम है किसी को जानना, किसी को पहचानना. नरेश गांधी साहब, you are so senior, I'm sure you all agree with me, sir. So what I'm going to do now, I'm going to ask, sir, मेरे को राज दुबेल साहब होस्ट बना दीजिए, so that मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर सकूं और इनको कुछ क्वेश्चन आंसर में ले जा सकूं. Sure, sir, sure. So to all my participants, I'm going to ask you very simple question. आप अपने चेक बॉक्स में जाके आपने उसका आंसर देना है, and it's very simple question. I'm here to make your life simple. I'm not here to make your life difficult. Believe me for this. And I know कि जितने लोग जवाब देंगे उतना ही सबका स्पिरिट मुझे समझ में आएगा कि आप सब लोग मेरे साथ में जगे हुए हैं. So my first question to all of you, and हालांकि सर ने मेरा इंट्रोडक्शन कर दिया है, बट फिर भी मैं आपको अपने बारे में छोटी सी बात बताना भी चाहता हूं, और आपको मैं, सर ने मुझे अलाउ कर दिया है. यस सर. सो नाउ मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन यही है कि आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी मी. यस, नो? Good. Okay, so as sir says, my name is Shankar Goenka. I'm very lucky that I have only one wife called Viniti Goenka, and I have 2 children, Radhika and Parth. ईश्वर की कृपा से, being my father is a known industrialist, I was able to work with industries for 16 years, and then I came into education world. So I have a reason that I can speak to you as a teacher. So please help me to understand, who is the biggest animal in jungle? Yes, please. You need to write in your box. Who is the biggest animal in jungle? Raj साहब, आपको आंसर आ रहे हैं? Yes, sir. Yes. Elephant. Yes, sir. So participants, I hope they are able to write it down. Wonderful. Yes. Almost all of them are saying. All of them are replying. Very good. Thank you very much for replying. Please, I would like to see your answers, and believe me, that is what is going to motivate me. So now the biggest animal in jungle is elephant. Wonderful. Now please help me to understand, who is the tallest animal in jungle? Yes, please. Who is the tallest animal in jungle? Giraffe. Very nice. Very good. Giraffe. I could see giraffe. Umesh Gawali sir, very active. I could see Ankit Rai sir, very nice. So the tallest animal in jungle is giraffe. Now my third question to all of you, who is the wisest animal in jungle? जंगल में क्लेवर एनिमल कौन है? फॉक्स. हरजीत सिंह साहब फॉक्स. यस. मजुमदार साहब, सुधीर साहब, थैंक यू वेरी मच. कैन यू सी द एक्साइटमेंट? राज दुबाल साहब, समझ में आया कि मैंने क्यों रिक्वेस्ट करी कि आई वांट टू सी द पार्टिसिपेंट. सो द क्लेवर एनिमल इन जंगल इज फॉक्स. माय लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, हु इज द फास्टेस्ट एनिमल इन जंगल? यस प्लीज. वाओ. चीता. लेपर्ड. चीता. वेरी नाइस. थैंक यू वेरी मच. मजुमदार साहब, कपिल अग्रवाल साहब, 118 HR 118. प्लीज अपना नाम ठीक कर लेंगे तो मुझे HR 118 नहीं बोलना पड़ेगा. आकाश कुमार साहब, थैंक यू वेरी मच. नाउ माय लास्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, हु इज द किंग ऑफ जंगल? लॉयन. अंकित राय साहब, लॉयन. कपिल साहब, वेरी गुड. जगदीश साहब, शिवजी साहब, एवरीवन इज सेइंग लॉयन. यस, किंग ऑफ द जंगल इज लॉयन. अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप सबको अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करना है, एंड दैट क्वेश्चन इज कि न तो लॉयन बिगेस्ट है, न लॉयन टॉलेस्ट है, न लॉयन वाइजेस्ट है, और न लॉयन फास्टेस्ट है. देन व्हाई द हेल ही इज द किंग ऑफ जंगल? यस माय ऑडियंस, स्ट्रॉन्गेस्ट, स्मार्टेस्ट,
अंकिता जी स्मार्टेस्ट लिखती है, पवन साहब करेज लिखते हैं, हरजीत सिंह साहब पावरफुल लिखते हैं, वेरी गुड। देखिए सुधीर साहब फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट। जनाब वो इसके लिए जंगल का किंग है क्योंकि उसका एटीट्यूड वैसा है। टू ऑल माय ऑडियंस, Right. the point I am trying to say is if you really want to be successful in life, you need to have that attitude in you, that boss, yes, I can do it. And this session of mine is going to help you with a very small tips how you can come to the next level in your life. Because the point I'm trying to say is कि खुशियां तो तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीरों में तो हर कोई मुस्कुराता है। What I'm going to do today is I'm going to Vishwanath Yarma Sahab, I'm going to help you how you can take yourself to the next level. Now in this picture, what do you see? इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है कि डॉग किसी आदमी को ड्राइव कर रहा है, यस और नो? और होना क्या चाहिए? आदमी ड्राइव करना चाहिए। हमारे लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज इस समय क्या है कि हमें पता ही नहीं कि जाना कहां है। हमें सोशल मीडिया ड्राइव कर रहा है, किसने कुछ कह दिया। आई वॉज टेकिंग अ सेशन विद द चिल्ड्रन yesterday morning, and when I asked the children of the college going, says, you know बच्चों तुम्हारी सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? कि इस एज में हर कोई आता है तुमको ज्ञान देके जाता है, बेटा ऐसा कर ले, तू ऐसा कर ले, तू ऐसा कर ले, तू ये काम कर लेना, तू ऐसे कर लेना। और ज्ञान कौन देके जाता है? वो इंसान भी जिसने अपनी जिंदगी में कुछ किया हो, और वो इंसान भी जिसने जिंदगी भर कोई झंडा नहीं गाड़ा हो। पर द चैलेंज इज इस देश में सर, क्यों राजेश आर्या साहब और अंकित मेहर साहब, व्हाट इज योर चैलेंज इन टुडेस टाइम माय डियर सर? कि जो आता है बेटा ऐसा कर ले, भैया ऐसा कर लेना, तो ऐसा कर लेना। एंड आई बिलीव दैट इज व्हाट द बिगेस्ट चैलेंज। सो व्हाट आई एम गोइंग टू हेल्प यू टुडे इज टू अंडरस्टैंड इस समय सोसाइटी में और दुनिया में दो तरह के लोग हैं। कौन? एक वो जिनको अपना गोल मालूम है। एवरी मॉर्निंग व्हेन दे गेट अप इन द मॉर्निंग दे नो कि मुझे कहां शूट करना है, और वो अपनी गोली ढक से वहां लगा। उनको पता है कि मुझे यहां जाना है। और दुनिया में दूसरे तरह के लोग कौन हैं? जो रोज सुबह उठते तो हैं और सबसे पहले गोली लगाते हैं, और फिर जहां उनकी गोली लगती है वो जाकर कहते हैं यही मेरा गोल है। एंड दे कीप ऑन स्ट्रगलिंग टू फाइंड आउट देयर गोल इन लाइफ। To all my audience, Prakash Avachat sir, thank you very much for being me. Harjit Singh sir, thank you so much. Shyam Prasad Ponkshe sir, thank you so much sir being with me. Jagdish sir. So what I'm trying to say, it's so very important in life कि हम ये पता करें मुझे पाना क्या है। If I ask this audience, I wish I could have interacted with you on one-to-one basis. And if I ask, please help me to understand how many of you have a goal in life. शुरू में 5 लोग उठाएंगे, 2 लोग उठाएंगे, फिर के अच्छा वो उठा रहा है, संजय डोडिया साहब मैं भी उठा लूं, आकाश कुमार साहब ने बहुत अच्छे से पहले से उठा रखा है, शिवजी तिवारी साहब सोच रहे हैं कि उठाऊं कि नहीं उठाऊं, सुरेश नायर साहब कह रहे हैं यार मैं तो कंपनी का हेड हूं, मैं तो मेरा तो गोल ऑलरेडी जिंदगी में है ही है, हरजीत सिंह साहब बड़े मुस्कुरा के। सो नाउ द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू टेल यू फ्रेंड्स, इस दुनिया में 99% पीपल आर देयर जिनका लाइफ में गोल नहीं होता, एंड दे थिंक उनकी फैंटेसी उनका गोल है, एंड दैट इज वेयर आई एम गोइंग टू हेल्प विद। मुंजात सर, इस समय दुनिया में आप किसी को भी पूछ लीजिए भैया क्या चैलेंज है, यार बड़ा स्ट्रेस में हूं, बड़ा डिप्रेशन में हूं। छोटे छोटे बच्चे जो 8, 9, 10, यू नो इन माय स्कूल व्हेन द चिल्ड्रन कम, क्या हो गया सर? बड़ा डिप्रेशन में हूं। किस बात का? बोले पता नहीं। सो माय फर्स्ट मैसेज टू, माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, you can manage stress, but you cannot manage over stress. Yes, no? मैंने कहा you can manage stress, you cannot manage over stress. और over stress खुद कौन लेता है? कोई आके नहीं देता तुम्हारे दिल में, आप खुद अपने आप लेते हैं। So it is your choice, you want to take it or not. और जिंदगी में एक बात मैंने क्या सीखी है दोस्तों, कि डिप्रेशन इज द डिजीज ऑफ रिच पीपल। You decide to choose to take depression.
you allow to someone to come into your life and make it happen. And Ankit Mayer Saab and Rajesh Arya ji, you two guys are young, very, very, वैसे तो सारे young हैं, but you know, from age perspective, the point I'm trying to tell you is कि guys, only boring people get bored. Hello? Many times people come say, यार बड़ा boring है, अरे भैया तू बोर है करके तेरे को सब बोर लग रहे हैं. If you are happy, no one can take that boring in you. So please learn how to be happy and good in life. And the biggest message I want to give all of you is कि 95% people in this world, hello, I am requesting all of you, please make a note of it. And I want कि इसका प्रिंट आउट लेके आपके ऑफिसेज में, आप सब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, इसका एक बड़ा सा प्रिंट आउट लेके अपने कमरे में जब आपकी आंख खुले वहां पर, और अपनी टेबल पे जहां पर आप बैठे वहां पर इसको चिपका लें कि 95% people in this world who are depressed cannot be cured with medicines. आप ये मत सोचिए साहब BHEL है, टाटा मोटर्स है, हम बीमार हो गए तो सारा पैसा, मुंजाल साहब हैं कि साहब सारा पैसा आपको हम लोग वी विल टेक केयर ऑफ यू. इफको जैसी कंपनी जो कि कहते हैं डोंट वरी, वी विल टेक केयर ऑफ ऑल योर मेडिकेशन एंड योर चैलेंजेस. बट सत्य प्रकाश साहब, प्लीज टेल देम कि डिप्रेशन कैन नॉट बी क्योर्ड विद मेडिसिन्स. यू ओनली क्योर बाय योरसेल्फ. सो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ इज, I have a very humble request to all of you. Please create a goal in life. अपनी दिशा तो बनाइए. And what you need to understand is, हम लाइफ में अक्सर करते क्या हैं कि आपने गोल बनाया और वो गोल का प्लान कामयाब नहीं हुआ तो हम क्या करते हैं, प्लान को बदल देते हैं. So what I'm trying to say, if the plan doesn't work, change the plan. Goal को मत बदलिए, plan को change करिए. And I believe that is how all of you can go to next level. And what I'm trying to say, friends, कि आप कैसे करना चाहेंगे? I'm going to help you with very small things, which is going to help you in a very big way. मुझे लगता है कि प्रेम प्रकाश साहब, विनय अग्रवाल जी, मोहम्मद मारूफ साहब, अंकित राय साहब, विनोद प्रसाद जी, अविनाश मोरे साहब, इनको ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि भैया कोई कॉन्फ्रेंस है इंसान वालों की और हम उसके मेंबर हैं, उसमें आप लॉगिन कर दीजिए. उन्होंने लॉगिन तो कर दिया पर उनकी शक्ल मैं नहीं देख पा रहा हूं. आई होप दे आर लिस्टिंग टू मी. My humble request, Vinay Agrawal साहब, thank you very much for coming on online. Now all of a sudden I could see R.K. Srivastava साहब, Ganesh साहब, thank you very much. Rakesh Atre साहब, so nice. काय चाललं साहब? I hope all well. So my first message to all of you is, please understand the difference between wake up and get up. And please help me to understand, at this point of time in your life, are you getting up or are you waking up? I'm sure Prakash Rachawat साहब, Vishwanath Verma साहब, OP Dwivedi साहब, I hope all of you understand the difference between getting up and waking up. Wake up means you come up in the morning, do some prayer, do some breathing exercise. Thank God कि आज तुम जिंदा उठे हो. कोरोना के पीरियड में हिस्ट्री बनते देर नहीं लगती. हाँ, कल मैं जानता था. कोई गोयंका साहब थे, क्या हुआ? कोरोना हुआ and he has gone. Please remember, you never know when you will become history. So please spend time on yourself. And getting up means बस आप उठे, जैसे ही आप मॉर्निंग में उठे, सबसे पहले आपने अपने सबसे प्रिय चीज मोबाइल फोन को अपने हाथ में लिया और दुनिया भर का ज्ञान आपने उस पर देखना शुरू करा. एंड सबसे बुरी बात यह है कि ऑल माय पार्टिसिपेंट हु आर लिस्टिंग टू मी, व्हाट आज आपको मेरे को एक प्रॉमिस करना है आउट ऑफ दिस सेशन. सतीश सर एंड प्रकाश सर एंड राजेश आर्य जी, आपने मुझे जरूर प्रॉमिस करना है. अंकित मायर साहब, आपने तो मुझे डेफिनेटली प्रॉमिस करना है कि आप में से सारे लोग, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, कल से मोबाइल फोन टॉयलेट में लेके नहीं जाएंगे. यस नो? विनीत पांडे साहब प्रॉमिस कर रहे हैं आप मेरे को? यू नो व्हाई? देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट कि आप क्यों नहीं मोबाइल फोन लेके जाना.
क्योंकि you can only download one thing at a time. Either you download your stomach or you download your messages. Choice is yours कि आप करना क्या चाहते हैं. नरेश गांधी साहब, आप मानेंगे मेरी बात को. संजय साहब, उमेश बापट साहब, आपकी हंसी देखकर मुझे आनंद आ गया, क्योंकि आप दिल से हंस रहे हैं. देखिए आज के जमाने में क्या हंसना भी बड़ा मुश्किल है. आपको कोई बात अच्छी लगी? आपको किसने अच्छे से नमस्ते करा? कुछ लोग हैं उनको हंसने में भी जोर आता है. उनको लगता है मैं हंसूंगा तो सामने वाला पैसे खर्च कर लेगा. और किसी किसी की हंसी इज $1 million हंसी. कहता है यार देखिए हंसता कितना अच्छा सा है, ये कितना, यू नीड टू लर्न दिस स्मॉल स्मॉल थिंग. सो कल से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने मोबाइल फोन टॉयलेट में मत लेके जाइए, क्योंकि यदि आपका स्टमक डाउनलोड नहीं होगा तो कुछ भी डाउनलोडिंग ठीक से नहीं होगी. आपको डिप्रेशन, स्ट्रेस, कंधे का दर्द, गले का दर्द, सारी चीज उसी से आती है. सेकेंड थिंग व्हाट यू नीड टू डू इज स्टॉप ब्लेमिंग. पता है हम दुनिया में क्या करते हैं? हम कंपनी में जाते हैं, 4-5 लोग मिलकर किसी एक बंदे को घेर लेते हैं और फिर उसके पीछे से पेट भर के बुराई करते हैं. हमारे मारवाड़ी में कहते हैं धाप के बुराई करना. फिर एक घंटे बाद क्या बोलते हैं? छोड़ ना यार, हमारा क्या लेन देन है इससे. बट जो आपने 5 लोगों ने 5 घंटे उसके ऊपर खराब करे, लास्ट में आप क्या कहते हैं? व्हाई द हेल वी आर टॉकिंग अबाउट हिम. सो मैंने, प्रकाश सर रिसेंटली लिखा है कि जिंदगी में शिकायतें करना छोड़ दो, आधी उम्र तो यूं ही बढ़ जाएगी. सो चॉइस इज योर्स. वैसे भी हमारा जो लाइफ टाइम है सर, वो खाली 67 ईयर्स का है. हेलो टू ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन, एनीवन हु इज गोइंग टू लिव अबाउट 67 years, thank God, thank your parent. अच्छा एक बात बताइए, बिफोर ये गोल की मैं बात करूं, आप में से कितने लोग हैं जो कि थैंकफुल हैं दूसरों के प्रति? देखिए हाथ उठाने में भी जोर आ रहा है. मैंने बहुत थोड़े लोगों को देखा हाथ उठाते हुए. तो मैं आपको एक बहुत बेहतरीन सा वीडियो दिखा रहा हूं जो कि मेरे बहुत दिल के करीब है. एंड आई एम श्योर आपको इस वीडियो से एक बहुत अच्छा मैसेज मिलने वाला है. पापा आपके लिए not visible to us. और पापा थैंक यू. किस बात के लिए? वीडियो नहीं आ रहा. हर बात के लिए. क्या हुआ सर? सर वीडियो नहीं आ रहा. वीडियो आ अच्छा ओके. वीडियो शेयर करिए सर. या सॉरी. मैं आप लोगों से बात करते करते इतना एक्साइटेड हो गया था कि सब कुछ भूल गया. यस वंडरफुल. यस सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी. पापा आपके लिए. और पापा थैंक यू. किस बात के लिए? हर बात के लिए. निकली है आज बरसों की बातें, कब से दराजों में रखी थी यादें, लिखी है लम्हों से अपनी किताबें, कब से दराजों में रखी थी यादें, कब से दराजों में रखी थी यादें, कब से दराजों. जिन्हें शायद आप कभी कह नहीं पाए, उन्हें कहिए थैंक यू. So what I'm trying to say, so the point and what I'm trying to request all of my participants is कि यार लाइफ में थैंक यू बोलना तो सीखो. You know friends,
मेरे को लगता है लाइफ में ना हम अपने पेरेंट्स को कभी थैंक यू बोलते हैं, ना हम अपने साथ वालों को थैंक यू बोलते हैं। हम तो एक चीज सीख गए, कंप्लेंट करना। मुंजाल साहब, इस कोरोना पीरियड में एक चीज सीखी सर मैंने, और आपको बड़ा ताज्जुब होगा, और जिसने मेरे दिल को बहुत दुखाया साहब, वो ये है कि आज के टाइम में जो सबसे बड़ा कम्युनिकेशन गैप है, दैट इज बिटवीन फादर एंड सन। कि चिल्ड्रन आर नॉट टॉकिंग टू देयर फादर फॉर मोर देन 2 months, 3 months, 6 months इन अ रो। हम किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? हम किस ग्रोथ की बात कर रहे हैं? My humble request to all my colleagues and all my great audience today evening is कि आप अपने साथ वालों को, अपने सीनियर्स को, अपने कलीग्स को जैसे ही प्रोग्राम खत्म हो सबसे उठकर कहो, यार यू नो आई एम सो थैंकफुल टू यू कि दैट यू आर इन माय लाइफ। और जितने मेरे मेंबर्स हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि ईश्वर की दुआ से यदि आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं या आप उनके साथ रह रहे हैं, तो आज जाकर उनके जरूर से पांव छुएगा और उनको थैंक यू कहिएगा। क्योंकि सर मैंने एक बात सीखी सर, कि इस दुनिया में पिता कितना भी नाराज हो, बेटा सिर्फ एक बार ये कह देने कि पापा आई एम सॉरी, आई बिलीव एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। I thought I must share this feeling of mine. So please stop blaming. My second message to all of you is please do meditation. Harjit Singh साहब कहते हैं, I daily talk with my mother, miss my loving father. Wow, thank you so very much. Thank you so very much, and I am so grateful to you, sir. So मेरे से अभी सर ने भी पूछा कि गोल सेटिंग कैसे करें। जो कुछ मैं बात आपको बता रहा हूं सर, ये गोल सेटिंग की बात बता रहा हूं। और दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं, लिसन टू अवर्स, लिसन टू योर कस्टमर। दिस इज द ग्रेटेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ दैट यू मस्ट स्टार्ट लिसनिंग टू पीपल। इस समय कोई आपसे ज्ञान नहीं लेना चाहता है, हर आदमी आपसे सुनना चाहता है, यू नो, कि मेरे दिल की बात तो सुन ले, एंड दैट इज हाउ इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। सेकेंड थिंग व्हाट यू नीड टू डू इज इंप्रूव नेटवर्किंग, which is very important. And last important is please improve your digital footprint. आज के इस युग में दुबाल साहब, आई एम श्योर, आई होप एंड आई एम श्योर यू एग्री विद मी कि आजकल कोई से बात नहीं करना चाहता है, अपने वालों से नहीं, वो तो फेसबुक इसके ऊपर देखना चाहता है, एंड that is how it works. So please improve your digital footprint. ये श्रीवास्तव साहब, आपने जो मेरी सीवी पढ़ी कि मैं गिटारिस्ट था, हॉकी प्लेयर था, थिएटर आर्टिस्ट था, ये तो मैं भूल ही गया था जीवन की आपाधापी में। ये तो कोरोना ने मुझे बताया कि जब मेरी पुरानी फोटो मिली, पुराने अवार्ड मिले, मेरे गिटार मिले, मेरे दोस्तों ने कहा मैन वो तू गिटार भूल गया। मैंने कहा यार मुझे तो मैं याद ही नहीं रहा। आई बिलीव डिस्कवर योरसेल्फ एंड दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू सेट योर गोल्स इन लाइफ। My next message to all of you, goal set करने का ये सबसे बड़ा मंत्र है, to understand your conscious and your subconscious mind. Hello, can I kindly request all of you to please sit straight like 90 degree like this? Yes, please. Can I request all of you to please work on your posture, and I request all of you to please sit straight so that I just help you a little bit with this. Yes. आकाश कुमार साहब, हाथ को बाजू में कर लीजिए and sit 90 degree like this. Yes sir, not on sofa. So even if you are sitting on sofa, please correct your posture so that you know it's going to help you. And what I request all of you to please close your eyes for 30 seconds. और आने वाले 30 सेकंड में कुछ मत सोचिए, देखते हैं क्या होता है। And your time starts now. Thank you very much, sir. Thank you very much. Please come back. Please come back. Rub your hands nicely, please. Take your hands like this and please rub it nicely, please. Thank you very much.
चश्मा हो सके तो 1 मिनट के लिए निकाल दीजिए। वीके श्रीवास्तव साहब, चश्मा एक बार निकाल के टेबल पे रख दीजिए, अपने हाथों को बहुत अच्छे से रब करिए एंड नाउ पुट इट ऑन योर आईज। गोल सेटिंग का सबसे पहला मंत्र ये है कि आप अपना फोकस और अटेंशन बढ़ाइए। यदि मैंने आपसे खाली 30 सेकंड कहा, 30 सेकंड में 30 तरह के विचार आए होंगे, उसकी पेमेंट देनी है, उससे पेमेंट लेनी है। श्रीवास्तव साहब सोच रहे होंगे यार वो आजकल मेरा वो तो जंग वाला माल ही नहीं बिक रहा है, किसी के दिल में कुछ चल रहा होगा, किसी के दिल में कुछ चल रहा होगा। सत्यप्रकाश जी सोच रहे हमारी तो फर्टिलाइजर की सेल इस साल डबल रही। तो ना सबके मन में कहीं ना कहीं पर्सनल प्रोफेशनल बातें आ रही होंगी। गोल सेटिंग का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट यू नीड टू गिव राइट कमांड टू योर कॉन्शियस माइंड। Hello, I request most of you if you could kindly write it down. Kapil Agrawal sir, I could see a beautiful conference room and thank you very much for sitting here with your team, sir. On the screen I could see only Mr. Kapil Agrawal and that's how I could say it. So what I'm requesting all of you is what you need to understand is you need to see how you work with your conscious mind, and that is what is very important. And that is what I'm going to speak to you now, how we can give command to our conscious and subconscious mind. क्योंकि please remember, आपका जो conscious mind है, वो 1/8 of your brain है. This 15 minutes, I'm going to speak something very strong. So either you need to make some notes, or what I can do, sir, the team from Insan, what I can do, I will share this PPT. And you can write a mail and I would like to share it with you. And I'll be more than happy that any one of you want to work with me on a one-on-one basis, I will do that hand holding with you. But this next 15 minutes are extremely important for you to understand what I'm talking. So your brain, 1/8 of your brain is conscious mind and 7/8 of your brain is subconscious mind. So what the research says, sir, whatever command you give it to your subconscious mind, you don't make a plan, the universe make a plan to make it happen. But अंकित मायर साहब, हम गलती क्या करते हैं कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक साथ कई कमांड और गलत कमांड देते हैं। क्या मतलब? आपने कहा मुझे अमेरिका जाना है, 1 घंटे बाद क्या सोचा, यार जाने का मन तो है पर वहां के लोग अच्छे नहीं है। Now your brain is confused कि यार इसको जाना है या इसको नहीं जाना है। हेलो, आर यू विद मी फ्रेंड्स? द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से कि आपको एक काम करिएगा, आज रात को ही करके देखिएगा कि जब आप सोएं और जो आपको कल अचीव करना है, चाहे आपको प्रेजेंट करना है, चाहे आपको सेल्स कॉल में जाना है, चाहे आपको मार्केटिंग करनी है, चाहे आपको प्रोडक्शन करना है, जो काम आपको कल करना है उसके बारे में कल सुबह मत सोचिए। जब आप रात को सोते हैं, सोने से पहले उन बातों को अपने माइंड में कमांड दीजिए, एंड आई गारंटी यू फ्रेंड्स, इट विल हैपन नेक्स्ट डे मॉर्निंग। बट ये कमांड देने के लिए श्रीवास्तव साहब, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको आपका सबसे प्रिय यंत्र रात को 2 से 2.5 घंटे पहले आपको इसको अपने से दूर रखना होगा। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि 2 चीजों के लिए हम अपनी लाइफ में मैक्सिमम टाइम प्लान करते हैं और वो कभी नहीं होता। एक तो ये कि मैं कल से सुबह जल्दी उठूंगा। अब वो एक बात अलग है कि 50-55 के बाद नींद कम आ जाती है, एक अलग मैटर है। पर यदि आप अंकित मायर साहब को पूछे भी तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है, तो बोले सब सोना। और दूसरा, हम सब लोग क्या प्लानिंग करते हैं कि आई विल गो फॉर मॉर्निंग वॉक फ्रॉम मंडे, एंड मंडे नेवर कम्स। करेक्ट, वेरी राइट। So my request is कि whenever you give a command to your subconscious mind, you sleep with that, and that is how it happens. So you need to, because the topic of the day is conscious and subconscious mind, so I just want to cover a little bit of this so that you understand it very carefully. अब ये conscious subconscious mind की कहानी क्या है?
इसकी कहानी यह है कि 10% is conscious mind and 90% is your subconscious mind. So I hope you are able to see my screen. Your conscious mind is willpower. It is short-term memory. It is logical thinking and it is critical. सबकॉन्शियस माइंड का सबसे बड़ा जो अचीवमेंट आपके लाइफ में वो ये है कि आपका बिलीफ सिस्टम आपके लिए काम करता है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपके इमोशंस के साथ काम करता है, आपके हैबिट्स के साथ काम करता है, आपके वैल्यू सिस्टम में काम करता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी, इमेजिनेशन एंड इंट्यूशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। माय सेकंड मैसेज टू ऑल ऑफ यू इज कि दैट कॉन्शियस माइंड इज ह्यूमन माइंड। I feel my sharing is not there. क्यों sir? I hope my screen sharing has cut off, so I will come back to you. Sure, it will come now. So the point I'm trying to tell you here is your subconscious mind is a divine mind, and your conscious mind is a human mind. क्या मतलब हुआ कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अलादीन है, जो हुक्म मेरे आका। आपने सुना ना अलादीन और चिराग की कहानी। So what it says, whatever instructions you give it to your subconscious mind, then he make it happen. Can I request my participant to please ask me any questions if you have at this point of time? Because I want you to ask me one or two questions so that I can help you with understanding of this. You can raise your hand and Raj Dubal Saab can unmute him or unmute the person and we will take it up. Yes, please. Any question? Or you want to, or are you asking me on chat? Can we change conscious to subconscious and vice versa? Say it again, sir. Can we change conscious to subconscious and subconscious to conscious? Is it possible? Yeah, you can make it from conscious and then the information go to subconscious. So what happened, sir? Since we don't have a belief system, and that is how it doesn't work with you. So Shivaji Tiwari साहब ने लिखा है कि I don't understand how it related to your professional life. So शिवजी तिवारी साहब, ये जो मैं आपसे कह रहा हूं ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ से संबंधित है। Because in your professional life you make a goal कि मुझे यहां तक जाना है, मुझे ये काम ऐसे करना है। I should, if you are in sales, can I see you, Mr. Tiwari Saab, if in case if you are available, if I can see you and if I can switch on your audio video, please, so that I can look at you and can answer your question. Because it is extremely important for us to understand कि how things help us in our personal life as well as in our professional life. क्योंकि एक बात जरूर से मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है सर कि only happy people produce happy results. And if you are happy at home, you will be happy at work. And if you are happy at work, you will be happy at home. Otherwise, life की कहानी ऐसे ही चलती रहेगी. So can I see Mr. Shivaji in case sir is available and if I could see him and talk to him? Okay. So शिवजी साहब, मैं कोई स्पिरिचुअल लाइफ की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ आपको लाइफ का एक छोटा सा मंत्रा देने की कोशिश कर रहा हूं कि गोल सेटिंग आपका तब होगा जब आप कॉन्शियसली कमांड देंगे। अदरवाइज आप लाइफ में सिर्फ फैंटेसी में रहेंगे कि मुझे ये पाना है, मुझे ये अचीव करना है और ये मेरा डायरेक्शन है। दैट इज द रीजन आई एम रिक्वेस्टिंग यू that it is very important for you that you do it consciously
and subconsciously, and that is how it happens in life. Sir, Now, can I interrupt for a moment? Yes, sir, please. Ashutosh from Munjal Shua. Namaskar, sir. नमस्कार सर, मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहता था. There are two words, faith and belief. Yes. तो इस subconscious mind and conscious mind में how does it work, faith and belief? थोड़ा सा please guide. Very good. Thank you so very much for asking question, and I truly appreciate it, sir. So faith and belief की मैं आपको कोई इसके बारे में यदि मैं आपको टेक्निकल एक्सप्लेनेशन दूंगा तो शायद लंबा हो जाएगा. मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं. Is it okay, sir? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो आपने देखा होगा कई बार रोड के ऊपर एक रस्सी लटकी हुई होती है बैम्बूस के ऊपर और उसके ऊपर एक लड़की जा रही होती है. Yes, no? I'm sure कई लोगों ने देखा होगा. Yes, yes. है ना, एक लड़की जा रही होती है और जितने लोग उसको देख रहे होते हैं वो उससे कहते हैं आई नो यू आर गोइंग टू क्रॉस दिस. और उस लड़की ने कहा अच्छा, आर यू सो श्योर अबाउट इट? बोले यस, वी आर सो श्योर कि आप इसको क्रॉस कर लोगे. तो उस लड़की ने कहा एक काम करो, तुम में से कोई आके मेरे पीठ पे बैठो एंड आई विल क्रॉस दिस. और सब वहां से भाग जाते हैं. आपका उसके ऊपर क्या था सर? हेलो, ये संजीव राही साहब, बिलीफ. आपका उस पर बिलीफ था पर फेथ नहीं था कि भैया मैं इसके कंधे पे चढ़ूंगा तो ये चला जाएगा. सो इन लाइफ सर, यही मैं आज आप लोगों से बात करना चाह रहा हूं कि हमें हमारी फैंटेसी ही हमारा गोल लगती है. एंड आई बिलीव मोस्ट ऑफ द टाइम दैट इज वेयर वी गो रॉन्ग. और देखिए साहब, इसका एक मैं आपको सबसे बड़ा एग्जांपल देने जा रहा हूं. अभी जो स्लाइड आपके ऊपर अभी जो आपके स्क्रीन पे आ रखी है, ये सबसे बड़ा आपके लाइफ का सबकॉन्शियस माइंड को दिया हुआ कमांड की छोटी सी स्टोरी है. तो सर, जैसे पेट्रोल लीटर में बिकता है या बढ़ता है, सब्जियां किलो में आती हैं, कुछ डजन में आती हैं, बुखार टेम्परेचर में गिना जाता है. आई एम श्योर जितने आप में से सब लोग मुझे देख रहे हैं वो सबके घरों में एक एक ऑक्सीमीटर आया होगा जिसके बारे में हमने कभी नहीं पहले सुना होगा. और आप उठकर थोड़ा सा सांस लेकर उसको इस उंगली में लगाते हैं और फिर देखते भैया मैं जिंदा रहूंगा यदि 95 है कि नहीं है. दैट इज हाउ. सो हर चीज का टेम्परेचर एक उसका पैमाना, एक मीटर है कैलकुलेट करने का. वैसे ही जो दर्द है, आप किसी को थप्पड़ मारते हैं तो कहते हैं कितना दर्द हुआ, ये कैसे कैलकुलेट होगा? तो उसका जो कैलकुलेशन का फार्मूला है वो डेसिमल है. जब हमारी 8 हड्डियां टूटती हैं तो 18 हड्डी टूटती है तो 18 डेसिमल का पेन होता है. जब आपका 10 डेसिमल होता है तब आप कहते हैं भगवान मुझे जीना नहीं है, तू मुझे दुनिया से उठा ले. That is the level of pain when it come to 10 decimal. पर जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है तब उसका डेसिमल जो होता है वो 12 डेसिमल का पेन होता है. जब 10 डेसिमल होता है तब आदमी कहता है भगवान मुझे नहीं बचना, मुझे तू उठा ले. पर जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तब उसका पेन 12 डेसिमल होता है. और 12 डेसिमल का पेन सहन करने के बाद जब वो माँ अपने बच्चे को डिलीवर करती है, विद इन 10 मिनट्स ऑफ दैट वो डॉक्टर से या पास वाले से सबसे पहले क्या पूछती है? मेरा बच्चा कैसा है? पता है क्यों? क्योंकि जिस दिन वो बच्चा अपनी माँ अपने पेट में कंसीव करती है उस दिन से सोचने लगती है कि ये सुंदर होगा, अच्छा होगा, खूबसूरत होगा. And that is how her subconscious mind decides that I'm going to deliver a nice baby. So can I request all of you to give a big round of applause to our mothers? क्योंकि दुनिया में माँ से मुकाबला कोई हम नहीं कर सकते. उस माँ का यही गोल होता है कि I'm going to deliver a nice baby. और वही गोल की बात ही है बिकॉज वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लेती है कि मेरा गोल क्या है. What you need to understand, all ladies and gentlemen, is कि आपका जो गोल है
तीन स्टेजेस में है। पहला, यू नीड टू हैव अ शॉर्ट टर्म गोल which is 2 to 5 years, and then you should have a long term goal ki what I want to achieve in life. Also, all of you need to understand from a goal setting perspective कि जो गोल सेटिंग है, जो गोल है, कई लोग आप में से भी जान रहे हैं सर गोल कितने होने चाहिए, क्या एक गोल होना चाहिए, क्या 5 गोल होने चाहिए? पर माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू प्लीज राइट डाउन कि गोल 4 तरह के होते हैं। Number 1, you need to have a physical goal. You need to have a wealth goal. You need to have a social goal. And you need to have a spiritual goal. देखिए साहब, हम अक्सर जीवन में जब लोगों से बात करते हैं हम क्या कहते हैं, मेरे पास तो टूटी हुई साइकिल थी, फिर लेमरेटा स्कूटर आया, फिर मैंने इतनी मेहनत करी, फिर मैं जीवन के इस मुकाम पे आया। यस नो? एंड इफ यू लिसन टू माय लाइफ स्टोरी कि आफ्टर हैंडलिंग 19 फैक्ट्रीज ऑफ माय फादर फॉर 16 years, 10th October 2006 आई वेंट टू माय फादर एंड आई सेड डैड आई डोंट वांट टू बी एन इंडस्ट्रियलिस्ट। तो बोले क्या करेगा? आई सेड डैड आई वांट टू बी ए टीचर। द मिनट आई टोल्ड माय फादर दैट आई वांट टू बी ए टीचर, हमारे मारवाड़ी घरानों में अक्सर 1 वे ट्रैफिक चलता है। He says either you handle this or leave home right away. At the age of 39 years, with 2 young children in my godi, I left my father house, came to Delhi, stayed at Nizamuddin railway station for 3 nights, and from there I picked up my story. And within 14 years of that, भगवान ने मुझे वापस वहीं लाके किया जहां पर जो मैं करना चाहता था। I am simply a teacher standing in front of you, but that is what I love and enjoy in my life. To all ladies and gentlemen, if you really want to have a goal in life, it is so very important in life कि काम करना और काम जज्बे के साथ करना दोनों अलग बातें हैं। इस स्टोरी में मेरे साथ एक घटना और घटी कि माय फादर डिडंट स्पीक टू मी फॉर 18 months। और जब बाप बेटे की लड़ाई होती है ना, सबसे ज्यादा मां पिसती है। My mother wanted me to speak to father and my father says why the hell I should। वो घर से छोड़ के गया, मैंने थोड़ा ना उसको घर से निकाला। So when my father asked me, Shankar, give me one good reason why you wanted to be a teacher. So I told my father that, Dad, we came from Rajasthan and we had 0 money and that's the story you tell me. और आपने तिनके से ताज का सफर तय किया इस सोसाइटी की वजह से। मुझे लगता है this is my turn or rather this is our turn to give back to the society। और मैंने कहा कि यदि मैं कामयाब हुआ तो लोग आप ही को याद करेंगे, गोयनका जी का लड़का अच्छा निकला। और यदि मैं फेल हो गया, जिसकी आपको सबसे ज्यादा चिंता है, तो आपने मुझे इस लायक तो बनाया ही है कि मैं 2 वक्त की रोटी कमा सकूं। And he says, बेटा go and do what you feel like doing। जनाब, ये मेरा गोल था कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना है। सो टू ऑल माय बिग कॉर्पोरेट्स, आई नो यू हैव CSR पॉलिसीज, आई नो यू गॉट एवरीथिंग विद यू, पर आपका पर्सनल गोल लाइफ का ये होना चाहिए, यू मस्ट लर्न एज मच एज यू कैन, देन यू मस्ट अर्न एज मच एज यू कैन, एंड देन यू मस्ट रिटर्न टू द सोसाइटी एज मच एज यू कैन। क्योंकि सोसाइटी को आप हेल्प करोगे, आप सबकी मदद करोगे, एंड दैट इज द मंत्र ऑफ माई लाइफ। एंड बिलीव मी सर, जिस दिन आप सब लोग अपना इस गोल को तय करेंगे, कपिल अग्रवाल साहब, उमेश बापट साहब, आपने इतनी दुनिया देखी है, सतीश सर, जयप्रकाश सर, राजेश आर्या साहब, अक्षय साहब, सुरेश नायर साहब, विजय अग्रवाल जी, आई एम श्योर देयर वुड बी सो मच ऑफ डिफरेंस इन एवरीवन्स लाइफ। और मेन बात क्या है, गोल को कामयाब होने के 4 मंत्र हैं। सबसे पहला मंत्र है कि आपको प्लान ठीक होना चाहिए।
जब आप प्लान आपका ठीक हो, उस प्लानिंग की प्रिपरेशन ठीक से करिए। और प्रिपरेशन कैसे करिए? डॉक्टर की तरह। जब एक डॉक्टर सर्जरी के लिए जाता है, समझो एक अपोलो हॉस्पिटल का डॉक्टर है और वो सर्जरी के लिए जा रहा है, और समझो उसका ऑपरेशन 4th फ्लोर पे है, और उसको यदि ऑपरेशन में सीजर चाहिए, वो ये बात नहीं सोचता कि यार जब सीजर की जरूरत पड़ेगी आई विल गो टू 2nd फ्लोर एंड आई विल ब्रिंग इट देयर। नो, ही विल डू कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर दैट सर्जरी। आपका जो प्लान है वो इस तरीके से होना चाहिए, विच इज कंप्लीटली प्रिपेयर टू डिलीवर। एंड द थर्ड इज यू प्रे फॉर दिस। आई एम श्योर जितने लोग सुन रहे हैं मुझे, आप सबके बचपन में जब आपके सामने खाना आता था तो हमारी माँ, हमारे पिताजी, गुरु कहते थे भैया हाथ जोड़ के खाना खा। वॉट एवर यू डू इन लाइफ, प्रेयर आई बिलीव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप उसके लिए प्रे करें। 4th इज परफॉर्म एज वेल as you can do it. So the point I'm trying to say, friends, to all ladies and gentlemen, it is so very important in life that you should have a belief in your goal कि बॉस मुझे ये पाना है, उसके लिए मैं काम जिस दिन। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, यदि एक सपना आपने पहली बार देखा, वो खाली सपना है, that is only your dream. If you see that dream twice, यदि आपने वो ड्रीम दूसरी बार देखा, that becomes your desire. और उस डिजायर को यदि आपने तीसरी बार देखा, that becomes your passion. And in life, if you keep on chasing your passion, it becomes your goal. But the challenge is, हम मॉर्निंग में कुछ सोचते हैं, दोपहर में कुछ सोचते हैं, रात में कुछ सोचते हैं, इसकी वजह से हम गोल नहीं बना पाते हैं। So my humble request to all of you is, please create your passion, create your goal in life. क्योंकि मेरा यह मानना है, यदि जिंदगी में आप अपने शौक को, सुनिए सर, ये मैं बड़ी जबरदस्त बात आप सबको बताने वाला हूं, and I'm sure many of you are going to call me in your plants when everything is going to get open. कि जिंदगी में आप अपने शौक को अपना पैशन बना लीजिए, आपको जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए विनीत पांडे साहब, कितनी मजे की बात है। मुंजाल साहब की इतनी बड़ी सशक्त टीम मुझे सुन रही है। कितनी मजे की बात है। पढ़ाना मेरा शौक है। क्यों श्रीवास्तव साहब? पढ़ाना क्या है? मेरा शौक है। मैं आपको पढ़ाकर क्या पूरा कर रहा हूं? अपना शौक पूरा कर रहा हूं। और मेरे अपने शौक पूरा करने के आप मुझे पैसे देंगे। दुनिया में कोई ऐसा प्रोफेशन देखा आपने? श्रीवास्तव साहब को सबसे पहले चिंता होती कि मैं फीस कितनी मांग लूंगा, तो पहले उसकी भूमिका बनाते, फिर धीरे से कहते सर जो पिछली बार के स्पीकर आए थे ना, हमने उनको उतना दिया था, गोयनका साहब प्लीज आप भी कंसिडर कर लीजिए। पर फिर भी आई एम हैप्पी, क्योंकि मेरे को तो जो दक्षिणा आ रही है अच्छी आ रही है। गोयनका साहब अब ऐसा नहीं है। No, I'm just making it light. The point I'm trying to say कि दुनिया में आप लोगों को अपने शौक पूरा करने के पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और मेरे साथ जीवन की कितनी बड़ी ईश्वर की कृपा है कि मैं शौक अपना पूरा कर रहा हूं, और अपने शौक को पूरा करने के पैसे आप दे रहे हैं। आप अपना शौक, अपना गोल, अपने बिलीफ को डिस्कवर करिए, एंड यू विल बी हैप्पी पर्सन इन लाइफ। एंड द मैसेज आई वांट टू कन्वे यू फ्रेंड, सक्सेस डज नॉट हैपन, you have to make it happen. जितने लोग बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ में जुड़े हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जस्ट बिकॉज यू बिकेम पार्ट ऑफ अ टॉप कॉर्पोरेट, इट डज नॉट मीन दैट इट इज योर सक्सेस। आपकी कॉर्पोरेशन सक्सेसफुल है, आपने मेहनत करके, एड ऑन करके, नया स्ट्रक्चर बना के कॉर्पोरेशन को सक्सेसफुल बनाना है। मेरे लाइफ का यह मंत्र रहा है, एंड प्लीज दिस माय मैसेज टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, प्लीज ये मत सोचिए ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या दे रही है, आप ये सोचिए मैं ऑर्गेनाइजेशन को क्या दे सकता हूं। सत्यप्रकाश साहब, इफको इसके लिए नहीं है
कि उन्होंने सोचा मैं क्या दे सकता हूं। टाटा मोटर्स टाटा इसलिए नहीं है, मुंजाल साहब के हीरो इसलिए नहीं है, BHEL इसलिए नहीं है कि उस ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा मैं क्या दे सकता हूं। उस ऑर्गेनाइजेशन का हर आदमी ने यह सोचा मैं ऑर्गेनाइजेशन को क्या दे सकता हूं। दैट इज व्हाई इट इज इफको, दैट इज व्हाई इट इज BHEL, दैट इज व्हाई इट इज टाटा मोटर्स, दैट इज व्हाई इट इज मुंजाल साहब, दैट इज व्हाई यू हैव सो मेनी टॉप कॉर्पोरेशन। यदि आपको जीवन में कामयाब होना है, पंकज अमारिया साहब, आई होप यू आर लिसनिंग टू मी, क्योंकि आपके चेहरे पे पट्टा है, मतलब टॉवेल है, तो मैं नहीं आपकी शक्ल को देख पा रहा हूं, बट सुरेश नायर साहब, आई होप यू एग्री विद मी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों बालकिशन शर्मा साहब, डू यू एग्री विद मी? उमेश सर, विनय अग्रवाल साहब एंड उमेश बापट साहब, संजय जी, कपिल अग्रवाल साहब, आई होप यू ऑल एग्री विद मी कि आप लोग अपनी पोजीशन पर इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि आप लोगों ने ये सोचा है मैं क्या दे सकता हूं, ना कि ऑर्गेनाइजेशन ने पहले सोचा आपको क्या दे सकती। एंड आई बिलीव हमारे यूथ को सबसे बड़ी सीखने की ये बात है। एक बात बताइए सर, आपको जिंदगी में देना अच्छा लगता है या लेना अच्छा लगता है? हाँ सर, लेना अच्छा लगता है, फिर बाद में मिलता है ऑटोमेटिकली। लेना, बस सुधीर ताते साहब, ये आप नहीं बोल रहे, हाँ, ये आपके जीवन का एक्सपीरियंस बोल रहा है, आप नहीं बोल रहे हैं। हाँ, ये जो पहले दे दो, बाद में मिल जाता तो ये है। जो आपकी इतनी सुंदर सुंदर दाढ़ी और सफेद सफेद बाल है ना सर, ये वो एक्सपीरियंस बोल रहा है कि लाइफ में देने का। और यही बात आई बिलीव दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि देने और लेने में क्या फर्क है। सो बिफोर आई एंड, एंड आई डोंट नो इफ आई कुड हैव 5-6 मोर मिनट्स, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि इस समय आप सबके सामने दो चॉइस है। नंबर 1 कि आपके पास में होप है, आप एक तरफ खड़े हैं जहां पर आशा है और दूसरी तरफ है पॉसिबिलिटी है। हेलो, आप देखिए कितना फैंटास्टिक गैप फाइंड कर सकते हैं। एक तरफ आशा है और एक तरफ पॉसिबिलिटी। आपने सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, इस आशा, इस होप और इस पॉसिबिलिटी के बीच में एक ब्रिज का रोल अदा करना है, सो दैट यू कैन गो टू दैट लेवल। एंड आई बिलीव दिस इज हाउ वी ऑल कैन गो टू नेक्स्ट लेवल। And what the reason I requested all of you to please make some notes on this, क्योंकि मेरा ये स्ट्रॉन्ग मानना है, इंसान सुनता है मन भर, सुनने के बाद प्रवचन देता है टन भर और खुद ग्रहण नहीं करता है कण भर। We are all very good at listening, we are very good at arguing, we are very good at giving ज्ञान। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऊपर वाले ने जो सबसे बड़ा गिफ्ट हमें दिया है वो भूलने का दिया है। दैट वी आर वेरी टेंड टू फॉरगेट थिंग्स वेरी फास्ट। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि प्लीज मेक अ नोट टुडे इवनिंग कि व्हाट इज माय गोल इन लाइफ। माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज मेक अ नोट ऑफ आपको जो भी 8, 10, 15, 20, 25 जो भी लगे कि बॉस मुझे ये पाना है, मुझे ये करना है, मुझे ऐसे करना है, उस गोल को सेग्रीगेट करिए और जिस पर आपका मन लगे कि मेरा ये लाइफ में गोल होना चाहिए, उस गोल को रात को सोने से पहले, मतलब सोने से मतलब अर्ध जागृत अवस्था, ना आपको नींद आ गई, ना आपकी आंख बंद है ना आपकी आंख खुली हुई है, उसके जो सेंटर का जो टाइम है उस समय जो कमांड आप अपने ब्रेन को देंगे, that is what is going to happen in your life, and that is how you set a goal in your life। और आप मल्टीपल चीजों का, so I'm not going to cover all this। और मैं आपको लास्ट में एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, which is, बाप रे, आप देखिए मैंने साहब आपके लिए कितनी मेहनत करी थी। तो मैं आपको मेन सबसे बड़ी बात, चूंकि इतने बड़े कॉर्पोरेट हैं और ये 4 आखिरी की स्लाइड नहीं दिखाऊंगा तो मेरे को फीस भी लेने का मन नहीं करेगा। और ये 4 स्लाइड ये हैं। अब देखिए मजे की बात क्या, जो आदमी फाइनेंस का होगा ना, बोले सर ये 4 स्लाइड को छोड़ दो, दिया आपको फीस नहीं लेनी है तो। पर जो लोग इमोशनल कहेंगे नहीं सर आप अपनी बात पूरी करो। सो मैं आपसे कहना चाहता हूं फ्रेंड्स, यूज योर इन्फ्लुएंस नॉट योर पावर। माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज प्लीज नोट डाउन दिस लाइन। हम क्या करते हैं, जैसे जैसे लाइफ में बढ़ते हैं हमें लगता है कि वी बिकम पावरफुल। डोंट यूज योर पावर, यूज योर इन्फ्लुएंस। एंड वन मैसेज आई वांट टू गिव ऑल ऑफ यू वेरी स्ट्रांगली इज, very strongly is कि please do not underestimate your influence on the people opposite to you।
विश्वनाथ वर्मा साहब, आई एम श्योर यू एग्री विद मी कि आपका इन्फ्लुएंस मुंजाल साहब से क्यों इतने प्रभावित है? नॉट बिकॉज मुंजाल साहब इज पावरफुल। मैंने सर को देखा है, जो इनसे मिलता है मैग्नेट की तरह खींचा चला जाता है। क्यों? क्योंकि सर का इन्फ्लुएंस इतना पावरफुल है। वीके श्रीवास्तव साहब जब कोई से बात करेंगे उसकी इतनी तारीफ कर देंगे कि आदमी को लगता है झुक के गुरुजी नमस्ते बोलिए, क्या करना है। सत्य प्रकाश जी को देखिए, इनके चेहरे की मुस्कान आप जब भी मिलेंगे, इनकी छोटी छोटी मूंछों के बीच में छोटी छोटी हंसी सी इनके आई हुई होगी। दैट इज द सो हर आदमी का अपना इन्फ्लुएंस है, आप अपने इन्फ्लुएंस को यूज करिए। बापट साहब के हंसने का तरीका अलग है। अभी आप सबको लग रहा होगा भाई मैं आपकी तारीफ क्यों कर रहा हूं, क्योंकि फीस आप लोगों ने देनी है तो थोड़ा तो बोलना पड़ेगा। एंड सेकेंड थिंग व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इज कि मदर टेरेसा और प्रिंसेस डियाना की डेथ में खाली 1 वीक का अंतर था। मदर टेरेसा 5 सितंबर 1997 को डेथ हुई थी और प्रिंसेस डियाना 31 अगस्त को हुई थी। बट ये दोनों, व्हेन प्रिंसेस डियाना डाइड 2.4 बिलियन पीपल वॉच्ड हर फ्यूनरल। दिस वाज द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस। She was not influenced because she was beautiful. There are n number of people who are more beautiful than Princess Diana. She was not influential because she was princess. There are n number of princes जिसको दुनिया जानती भी नहीं है। और ये जितने लोग अभी आपके सामने आ रहे हैं, ये ऊपर वाले सारे इन्फ्लुएंशियल हैं, नीचे वाले सारे पावरफुल हैं। Yes or no, friends? और एक बात मेरी लाइफ में सबसे अच्छी सीखने को मुझे मिली कि सत्ता तो विरासत में मिल सकती है, बुद्धि विरासत में नहीं मिल सकती। इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स कि हम विरासत में किसको क्या देके जा रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट आई वांट टू टेल यू फ्रेंड, दैट द रॉन्ग पर्सन इन द रॉन्ग प्लेस विल ऑलवेज हैव रिग्रेशन। यदि आप अपने लाइफ का गोल नहीं बनाएंगे तो believe me friend that the wrong person in the wrong place will always have regression. The wrong person in the right place will always have frustration, and the right person in the wrong place will always have confusion, and the right person at the right place will always have progression. हमारी सोसाइटी, हमारा समाज, हमारा देश, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारा घर, हमारा परिवार तब डेवलप होगा when the right people at right places. Please set a goal and you will never go wrong in life. और मेरा ये मानना है दोस्तों, इसकी चिंता मत करिए कि मैं सही हूं तू गलत हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है सड़क कितने भी साफ, आई एम नॉट टेकिंग दिस नाउ, द ओनली पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज मंकीज आर ग्रेट क्लाइंबर्स बट इवन मंकीज फॉल आउट ऑफ ट्री। इस दुनिया में सबसे ज्यादा कूदने फादने वाले कौन है? बंदर हैं, पर फिर भी बंदर पेड़ों से गिर जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट। बापट साहब एक नई बात समझ में आई इन दिनों में, सबसे दुनिया में सबसे बढ़िया बात क्या है? दुनिया का हर लड़का चाहता है मुझे बेस्ट लड़की मिले, और दुनिया की हर लड़की चाहती है कि मुझे बेस्ट लड़का मिले, और दुनिया की हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है मुझे बेस्ट एम्प्लॉय मिले, और दुनिया का हर एम्प्लॉय चाहता है मुझे बेस्ट एम्प्लॉयर मिले। पर मजे की बात क्या है कि परफेक्ट डजंट एग्जिस्ट। करेक्ट। और मेरे जिंदगी की सबसे बेस्ट लाइन क्या है कि एनीवन कैन मेक मिस्टेक्स। हम में से कोई भी गलती कर सकता है, पर कामयाब आदमी वो है जो अपनी गलतियों से सीख के आगे चलता है। और मेरा ये स्ट्रांगली मानना है कि सड़क कितनी भी साफ हो, धूल हो ही जाती है, और इंसान कितना भी अच्छा हो, भूल हो ही जाती है। सो डोंट वरी अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स। विद दिस नोट, यू ओनली लिव वंस, बट इफ यू डू इट राइट, वंस इज इनफ। अपने आप को प्रूव करने के लिए 7 जन्म लेने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले ने आपको एक मौका दिया है, उसको बेस्ट यूज करिए। और लास्ट की लाइन ये है दोस्तों कि लाइफ इज नो रिमोट, गेट अप एंड चेंज इट योरसेल्फ। हमने सुना ना, हम सब की डोर किसी न किसी के हाथ में है, किसी और के हाथ में हो ना हो, ऊपर वाले के हाथ में है। अपनी डोर किसी के हाथ में मत दीजिए। इफ यू वांट टू चेंज, चेंज इट योरसेल्फ। मैंने क्या कहा? सक्सेस डज नॉट हैपन, यू हैव टू मेक इट हैपन। अपने पेरेंट्स की, अपने एम्प्लॉयर की, अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि मेरा ये स्ट्रांग मानना है, शौक तो सिर्फ माँ बाप के पैसों से पूरे होते हैं। शौक तो सिर्फ माँ बाप के पैसों से पूरे होते हैं, अपने पैसों से तो सिर्फ जरूरतें पूरी होती हैं। Respect your parents as much as you can. With this note, may God bless you and your family today and always. Thank you so very much for being with me. It was a pleasure meeting you, and I hope to see you again. I'll be more than happy
And Srivastava Sahab, if you allow, would like to have a 5-minute question answer, so that if something is there in someone's mind, I would be more than happy to answer their question. But thank you so very much. Sir, there is no Thank you question so of very doubt, much. sir. You are welcome. Namaste, sir. Anybody can have any question. Yes. 5 minutes. Sure. But thank you very much. I truly appreciate all your time, efforts. मुंजाल साहब, आपकी कृपा ऐसे ही बनाए रखें, ऐसे ही हम पे बनाए रखें. Senior members, Saket Kumar ji. Thank you very much. You spoke very well. Thank you, sir. Thank you very much. Very simple language. Everybody understood everything. Thank you, sir. Thank you so very much. I hope they will carry back something and will implement some things in their life and organization. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Thank you so much. डॉक्टर साहब एक सवाल है. जी सर. पूछो क्या? सर पूछिए ना सर. सवाल ये है कि शादी में हम हमारे पार्टनर को 7 जन्म का वादा करते हैं, वो निभाते हैं कि हम? वो तो आप देखिए सर, आप किसी भी लड़के से पूछिए, बोलेगा मेरे से तो बढ़िया कोई निभा ही नहीं रहा है. यही बात तो मैंने कही कि whether we are living in organizations, whether it is or living at home, whether it is your personal life or your professional life, setting up goal is so very important कि मुझे जाना कहाँ है और मुझे जाने का तरीका कैसे करना है. I believe that is what is very important in life. Thank you. Thank you, doctor. Thank you very much, sir. आज आपकी इतनी बड़ी इतनी इफेक्टिव स्पीच और इतना अच्छा आपका जो डिस्क्राइब करने का जो तरीका है, बस सो सिंपल. आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू मंजाल साहब. रियली आई हर्ड लास्ट टाइम, इफ यू रिमेंबर, in one hotel in Delhi, once you came in our program, that was the first Insan NIC program where all the CEOs were there, not this second one, very first one. Very first. सर मैं श्रीवास्तव साहब आपको मैं रोक रहा हूँ. वरुण मल्होत्रा साहब ने मुझसे पूछा कि सर sometimes we get scared that will passion be good source of earning and livelihood. वरुण सर, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, यदि आपको डर है इसका मतलब आप श्योर नहीं है. यदि आप श्योर होंगे, यदि आपका बिलीफ सिस्टम अच्छा होगा, आपको कभी डर नहीं लगेगा सर. और सर ज्यादा को छोड़ दीजिए, मुझे देख लीजिए सर. एक अरबपति बाप का बेटा घर से निकला और इसीलिए आया क्योंकि शायद मेरे बिलीफ सिस्टम ने मेरी मदद करी. सर वही सुन के मैं आंसर अगला क्वेश्चन नहीं डाला था, क्योंकि मेरा भी पैशन वही है जो एक्चुअली आपका है. आई ऑल्सो वांटेड टू डू दैट, बट कर कुछ और रहा हूं मैं. हाँ तो उसको करिए ना सर. आपको यदि आप ट्राई तो करिए. और मैं आपको बताता हूं सर, पढ़ाने के लिए इससे बढ़िया टाइम जीवन में दोबारा नहीं आएगा. सर मैंने आपसे क्या कहा, शौक मैं पूरा कर रहा हूं, उसके पैसे आप दे रहे हैं. ये तो कोरोना टाइम है, आपसे स्क्रीन पे जो भी आप देंगे ले लेंगे, क्योंकि मैं पहुंच तो सकता नहीं तो सर एक दिन पढ़ाने के 2 से 2.5 लाख रुपए मुझे रोज मिलते हैं. बताओ कहीं मिलेंगे किसी को? 2.5 लाख रुपए में कितना जोर आता है कमाने को. सो व्हाट आई एम सेइंग, यदि आप में सब्सटेंस होगा, यदि आप में क्वालिटी होगी, यदि आप उसके लिए मेहनत करेंगे, ईश्वर, अल्लाह, ऊपर वाला आपकी जरूर मदद करेगा. टेक माय वर्ड्स फॉर दिस. मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि देखिए, भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को हमने कभी देखा नहीं है. आपका एक्सपीरियंस ही भगवान. पर आपका ऊपर वाला तब मदद करेगा जब आपको, आई एम श्योर, आप मेरा छोड़ दीजिए, वरुण मल्होत्रा साहब मुझे छोड़ दीजिए, हमारे पास इतने सीनियर लोग बैठे हैं, मुंजाल साहब जी हैं, सुधीर दाते साहब हैं, आर के श्रीवास्तव साहब हैं, जगदीश प्रसाद जी, उमेश, इनसे पूछिए, ये आपको बताएंगे कि भैया हमने एक्सपीरियंस करा है, अच्छे बुरे समय हम सब ने देखे हैं. आपका बिलीफ सिस्टम, इसीलिए कहा ना कि मैं यूं ही नहीं बन जाता, आपका बिलीफ सिस्टम. और मजे की बात है, और खोने के लिए क्या है, आप सबसे बड़ा एग्जाम. सर देखिए, मैंने कल ही सर लिखा है, एसी और बीसी सबने सुना, आप सबने पढ़ा होगा ना? यस नो प्लीज, ऐसे हाथ करने. एसी और बीसी सुना है ना? आफ्टर क्राइस्ट, बीसी बिफोर क्राइस्ट. अब आपने एसी बीसी के डेफिनेशन बदल दीजिए, आफ्टर कोरोना एंड बिफोर कोरोना. Right, sir, right. Before Corona, the life was completely different, and after Corona, the life is completely different. जिंदगी वैसी नहीं रही जैसी हुआ करती थी. So don't worry about it. आप अपने पैशन को परस्यू करिए सर.
आप अपने मन में विचार डालिए और आपको जरूर ऊपर वाला रास्ता देगा। ये मेरा बिलीफ है सर आपके लिए। एंड मैं सर, दूसरा वरुण सर, आपको कहीं भी चैलेंज आ रहा है, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। माय नंबर्स आर देयर एंड यू आर मोर देन वेलकम टू कांटेक्ट मी। और मजे की बात, मैं आपसे कोई फीस नहीं लूंगा सर। जितने लोग इस समय इंसान के प्लेटफॉर्म पे हैं, इफ यू कॉल मी अप, आई प्रॉमिस यू, मैं इंसान से पैसे ले लूंगा, आप चिंता मत करो। मैं कहूंगा भैया आपके मेंबर को अपग्रेड कर रहा हूँ, कुछ तो करो। सो डोंट वरी अबाउट फीस एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। मैं इंसान छोड़ करके आपके साथ ही हो जाऊंगा। बट थैंक यू वेरी मच अशोक शर्मा साहब, बहुत शुक्रिया। हरजीत साहब, शिव तिवारी जी एंड अशोक शर्मा जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर मीटिंग विद मी। डॉक्टर ख्याली राम सर, थैंक यू सर, एंड शिव शर्मा सर, नमस्ते। Thank you, sir. Dr. Venkata Saab, I want to say something. Your question answers sir. are over. Yes, sir. First of all, as president of ENSAN, it's really our honor and pleasure कि आपको हमें सुनने का मौका मिला. And I think you dealt with a very relevant subject कि how we should handle our life. गोल सेटिंग का मतलब क्या है, गोल सेटिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, एंड यू केप्ट अस एब्सोल्युटली स्पेल बाउंड थ्रू आउट द सेशन। मैंने आपको सिर्फ थोड़ी देर के लिए दिल्ली में सुना था, एंड आई वाज वेरी हैप्पी दैट यू हैड एग्रीड टू टॉक टू अस, एंड बिलीव मी, आई एम श्योर जितने लोगों ने भी सुना होगा, वी लर्न समथिंग टू कैरी विद अस, क्योंकि ये जो है पर्सनली वी हैव ऑलवेज स्ट्रगल्ड विद I think it's very rare that people find the true goals for their life. I don't think it is very, very easy because we keep shifting, as you said, a goal and then we get into activity trap. हमारा होता क्या है, हम लोग ज़्यादा activity trap में फंस जाते हैं. So goal setting is not something that, at least I have tried, and I know that it's not so easy exercise to continue on goal setting. But it is worth, because without goal, you don't know where you're going. You don't know where what the goal is, where will you go. So it's important, but the only thing is that we look for signs on the way to the goal to see whether our goal is really achieved or not achieved. And that is where the most struggle comes. कि हम लोग रास्ते में देखते हैं कि भाई इस शहर जा रहा है, तो शहर का बोर्ड नहीं दिखेगा, तो हमको ये नहीं पता चलता कि whether we are going to the right city or right direction or not. तो कभी कभी लगता है आप जैसे लोगों से सुन के कि that yes, we can learn something and we can get some post on the way, passion that is required to get ahead, because everything else is secondary to the goal that you have set up. Then only you can really achieve the goal. It's very inspirational that you have spoken to us, and I think ENSAN, on behalf of all our colleagues at NIC, at ENSAN and our other members, I wish to thank you once again and look forward to listening to you more number of times, so that we are inspired even at ENSAN to really take it further. Thank you on behalf of all of us. Pleasure, sir. Thank you, sir. Thank you very much for this opportunity, sir. Dr. Saab, can I request you? Yes, sir. We are having our bulletin of ENSAN. Can we expect some contribution from you for the bulletin? The contribution in what way? An article. Article तो आ ही जाएगा सर. हाँ तो वो अच्छा रहेगा, because very few people today, maybe about 110 or more people have heard you, but more people, if they read, they will be more interested to listen to you through the bulletin itself. Done. Thank you very much. My request. Pleasure. I will send it to you, sir. Thank you. Yes. Thank you, sir. God bless you and see you all. I think today time was supposed to be minimum 2 hours, not 1 hour. Sir, it's already 1.5 hours, so no worries. But it was very lively and very interesting. I think the way you have narrated the whole thing, which is very, very important. Even today onward also, if somebody wants to improve, there will be a lot of improvement. Because with so many goals, we forget the main goal. We cannot achieve the main goal. And the way you have described, the way you have
given the example in a very simple manner. उससे ऐसा लगता है कि yes, we इंसान has to join wow factor. Sir, I will request President Insan and our Chairman Insan and IC, sir, why not we should join wow factor where we can have more exposure at international level. I think you have promised me, Goenka Sahab, if I am not wrong. Anytime. So I go to about 18-20 countries, sir, and I teach in about 11 different languages. So anytime, welcome. Sir, I am talking specifically about the South Africa. Anytime, welcome. Welcome. So there, I want that Insan must be having some, some banding with the wow factor, so that every year at least keep on going and attending the program and sharing the what you have shared today here, and we can also want to see at the international level what is going to happen. Anytime. PK, on behalf of all of us, we should say wow, not thank you. Yes, wow. So say all wow. Thank you, sir. Thank you very much. So really, it was very interesting, and I will request our Joint Secretary, Mr. Satprakash Ji, who is going to give the vote of thanks to all. Yes, Mr. Satprakash Ji. प्रकाश सर डिस्कनेक्ट हो गया. No, you are connected, sir. You can talk. We are able to hear you. I am connected, Raji. I am connected. Yeah, you are connected. Yes, sir. जोर से बोलिए. Hello. बोलो. Yes. Speak. Respected Munjal Sahab, Bapa Sahab, दाते साहब, आज के चीफ गेस्ट गोयनका साहब, श्रीवास्तव जी और मेरी कमेटी के श्री नरेश गांधी, जेपी फ्रॉम BHEL, जगदीश प्रसाद जी, राज दुवाल जी, जिन्होंने ये प्रोग्राम यहाँ पर कंडक्ट किया. आज मैं जो अभी बाबा साहब कह रहे थे कि हमें आज तो केवल बाव कहने का मन कर रहा है. जो जिस तरह से डॉक्टर गोयनका साहब ने हमें एक्सप्लेन किया है अपना सब्जेक्ट, वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और बहुत ही व्यवहारिक तरीके से जो उन्होंने बताया है गोल सेटिंग का, मैं डॉक्टर गोयनका का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ. और डॉक्टर गोयनका के साथ मेरे संबंध करीब आज से 10 साल पहले से हैं. श्रीवास्तव जी को साउथ अफ्रीका जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे डॉक्टर गोयनका के साथ साउथ अफ्रीका जाने का मौका मिला 2011 में. इफ्को की तरफ से डॉक्टर साहब मुझे यहाँ से लेके गए थे और बहुत अच्छा लगा. जो यहाँ पर साउथ अफ्रीकन क्रिएटिविटी फाउंडेशन के साथ इन्होंने मिलकर जो प्रोग्राम वहाँ पर किया साउथ अफ्रीका में, रियली बहुत अच्छा प्रोग्राम डॉक्टर गोयनका साहब वहाँ पर करते हैं. और श्रीवास्तव जी सच कह रहे थे कि इंसान को भी उनके साथ कुछ टाई अप करना चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पे हम इंसान को लेके जा सकें. तो डॉक्टर साहब मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुत ही आसान शब्दों में हमें ये सब बताया. और मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे नेशनल प्रेसिडेंट श्री बापत साहब का, जिनकी प्रेरणा प्रोत्साहन से हम ये कार्यक्रम, ये दूसरा प्रोग्राम हमने किया है और मुझे लगता है आगे भी इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे. मैं सर आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं. और हमारे मुंजाल साहब, जिनकी प्रेरणा से हम नॉर्दर्न इंडिया चैप्टर आगे बढ़ रहा है, जो हमेशा हमें हर कदम पर हमें मार्गदर्शन करते हैं. तो मैं मुंजाल साहब का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं. और मैं अपने दाते साहब, जिनका समय पर मुझे
मार्गदर्शन मिलता है। दाते साहब हमेशा गाइड करते रहते हैं कि अभी ऐसे करना है या वैसे करना है, तो दाते साहब का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जो कार्यक्रम आज यहाँ पर संपन्न हुआ, राज दुबाल साहब जिन्होंने इसको फैसिलिटेट किया, तो मैं राज दुबाल साहब का भी हार्दिक इंसान NIC की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपने कमेटी मेंबर्स नरेश गांधी, जगदीश प्रसाद जी और यहाँ उपस्थित मेरे सभी साथियों का दिल से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। Thank you, sir. Okay, thank you. With this, we will formally end this today's program. Thanks all of you for joining today's wonderful session.